read at the end of time. मेरे आज का अनुमान आखिर ज़माना और हमारी तैयारी। Matthew chapter 24 verse 42. मुकद्दस मत्ती की इंजील 24 बाब उसकी 42 आयत। Therefore keep your watch, because do you not know what day the Lord come will? बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। From the beginning of history, humanity he asked, इंसान सदियों से ये सवाल करता आया है, how will it the end? आखिर ज़माना कब आएगा? The Bible does not give us the time of create fear, बाइबल हमें आखिर ज़माना खौफ फैलाने के लिए नहीं, but to the inspired faith, holiness and the hope. बल्कि ईमान, उम्मीद और पाकीज़ा जिंदगी के लिए बताती है। The end of time is not the end of the story. आखिर ज़माना इख्तिताम नहीं बल्कि हमेशा की इब्तिदा है। It is the beginning of entry, आखिर ज़माना का यकीनी होना, the century of the end of time. आखिर ज़माना का यकीनी होना। Hebrews chapter 9 verse 27. इब्रानियों उसका 9 बाब उसकी 27 आयत। Just as a people against of the dead ones of the after that to face of judgment, और जैसे इंसान के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत होना मुकर्रर है, the Bible is clear. बाइबल के यकीनी तरीके से बताती है, Time is temporary, ये दुनिया आर्जी है, century of center. वक्त में दूध है, Every life has a divine appointments. हमेशा की जिंदगी यकीनी है। The world will not end by the accidents. खुदा ने वक्त को बनाया है It will end up the God designs. और वही उसका इख्तिताम करेगा। Revelation chapter 21 verse 1. मुकाशवा उसका 21 बाब उसकी पहली आयत। Then I say new heaven and a new earth. फिर मैंने नया आसमान और नई जमीन देखी। God is not destroying creation, He is renewing it. आखिर ज़माने की निशानियाँ, The sign of the end. आखिर ज़माने की निशानियाँ। Matthew chapter 24 verse 6 to 8. मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 6 का 8 आयत। Jesus spoken of यीशु ने फरमाया, wars to rooms of wars, females of the earth quakers, जंगी और जंगों की अफवाहें, the shepherds and the lawless, कहत और destroying. कहत और ज़लज़ले। These signs not matter to the case but the preparation. ये निशानियाँ हमें खौफजदा करने के लिए नहीं बल्कि खबरदार करने के लिए हैं। Luke chapter 21 verse 28. मुकद्दस लूका की इंजील 21 बाब उसकी 28 आयत। When these things of purging take place, stand up and the left your hands. जब ये बातें होने लगे तो सीधे खड़े हो जाओ क्योंकि तुम्हारी निजात करीब है। Because your redemption is drawing near, क्योंकि तुम्हारी निजात करीब है। the sign reminded us, यीशु मसीह की दोबारा आमद, God is in control. मसीह यीशु की दोबारा से आमद, Christ is coming again. मसीह यीशु की आमद, Time is moving toward a fulfillment. यही यीशु जिसने तुम्हें आसमान पर जाते देखा, The return of Jesus Christ. यीशु मसीह जिसने तुम्हें आसमान पर जाते देखा उसी तरह वापस आएगा। Acts chapter 1 verse 11. इमाल उसका पहला बाब उसकी 11 आयत। The same Jesus will come back the same way the heaven of see him go into the heaven. यही यीशु जिसे तुमने आसमान पर जाते देखा है इसी तरह वापस आएगा। Jesus will return यीशु की आमद होगी personally, हकीकी, powerful, जलाली, visible. सबके सामने। Revelation chapter 1 verse 7. मुकाशवा पहला बाब उसकी 7 आयत। Look, he come within the clouds, and every eyes will see him. देखो वो बादलों के साथ आ रहा है और हर आंख उसे देखेगी। For believers is not of it is अदालत और हमेशा की जिंदगी, judgment and entry. अदालत और हमेशा की जिंदगी। Corinthians chapter 5 verse 10. दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 10 आयत। For we must all appear before the judgment seat of Christ. क्योंकि हम सबको मसीह की अदालत के सामने हाजिर होना होगा। There are only two eternal destinations. दो ही रास्ते हैं, Eternal life with God, हमेशा की जिंदगी, eternal separation for God. हमेशा की जुदाई। Salvation is the received thought Christ. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। John chapter 3 verse 16. मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत। However, believers in him shall not preach
कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। निजात अमाल से नहीं बल्कि ईमान से है। How should we live life at the end of time? निजात ईमान से नहीं बल्कि ईमान से है। 2 Peter chapter 3 verse 11 to 12. दूसरा पत्रस उसका 3 बाब उसकी 11 आए। What kind of people you to be? तुम्हें पाकीज़गी और दीनदारी में कैसा होना चाहिए? You will be like holy and goodly leaves. हमें चाहिए कि जानते रहें। We are the call to पाकीज़गी जिंदगी गुजारे, दूसरों से मोहब्बत रखें, खुशखबरी सुनाए, live read, खुशखबरी सुनाए, live deeply, दूसरों से मोहब्बत रखें। save your faithfulness. आखिरी ज़माना छुट्टी का नहीं बल्कि गवाही देने का वक्त है। A call of readiness. नतीजा तैयारी की दावत। Matthew chapter 25 verse 13. मुकद्दस मत्ती की अंजील 25 बाब उसकी 13 आए। Therefore give watch because you do not know day of hour. बस जागते रहो क्योंकि तुम उस दिन को और उस घड़ी को नहीं जानते। The question is not when the end of will come. सवाल ये नहीं कि आखिरी ज़माना कब आएगा। The question is, सवाल ये है, are you ready? क्या तुम तैयार हो If Christ return today, कि खुदा वापस आए? would your heart be at the peace? अपने दिलों को तैयार कीजिए। Would your life reflect faith? अपनी जिंदगी को पाकीज़ा कीजिए। Would your hope be pure? हमारी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक हो। Closing prayer. इख्तितामी दुआ। Lord, teach, remember of days. ऐ खुदावंद हमें अपने दिनों को गिनना सिखा। Help us live entry of mind. हमें हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार कर। Prepare our hearts of your return. हमारी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक हो। May we be found faithful time thus forever. In Jesus' name, Amen. हमारी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन।